آپ اس سائڈ پہ جائیں. بلاول صاحب پلیز بات کریں. جی جناب اسپیکر آپ کا شکریہ. جی بلاول صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اسپیکر صاحب میں بڑا جلدی سے بکلا رکھے نالتا آپ کی کیفیت ہے. جناب اسپیکر آئٹم آپ نے منہ کر دیا, وہ منہ کا ہو گیا. جی جی بلاول صاحب بات کریں. اتنا ٹائم ہم نہیں لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں کر سکتا. جی جناب بات کریں. اسپیکر آپ کا آپ ادھر جائیں. جی اٹینشن کا ہم یہ ایک یاد رکھے. دیکھیں ایک منٹ میں آپ کو بہت احترام سے, اس چیئر کا کوئی رسپیکٹ ہے. جس طرح یہ مجھے نام نہیں آتا, اس نے جس طرح بیہیو کیا بلاول صاحب, آپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو موقع دے رہا تھا, یہ نہیں ہے میں صرف وہ موشن موو کر رہا تھا. جی بلاول صاحب پلیز. جناب اسپیکر ہم آپ کا عہدہ کا بھی احترام کرتے ہیں, ہم آپ کا کرسی کا بھی احترام کرتے ہیں, ہم اس پارلیمان کا احترام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, اور ہمارا مجھے پتہ ہے اس پہ رولنگ ہے ہماری. ٹھیک ہے, ہمارا ریکویسٹ اتنا ہی ہے کہ آپ بھی بڑا مہربانی کر کے اپنا ہی کرسی کا عزت کرے, اپنا ہی عہدہ کا عزت کرے. آپ اور ٹریجری بینچز کا ممبرز اس پارلیمان کا عزت کرے. آپ کے پاس اکثریت ہے, آپ حکومتی جماعتیں ہیں, کرنا آپ نے وہی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں, مگر کام کرتے ہوئے اس قوم سے جھوٹ نہ کہا جائے, اس ہاؤس سے جھوٹ نہ کہا جائے. غلط بیانی حکومت کے طرف سے تو بالکل نہیں آنا چاہیے, لیکن جناب اسپیکر آپ کا دفتر سے, آپ کا عہدہ سے ہم ہمیشہ یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنا عزت کرتے ہوئے, اپنا عہدہ کا عزت کرتے ہوئے, جو بات آپ کرتے ہو, جب آپ زبان دیتے ہو تو اسد کیسر صاحب اپنا زبان نہیں دے رہا ہے, the custodian of the National Assembly of Pakistan اپنا زبان دے رہا ہے. اور جب when the custodian of the National Assembly of Pakistan writing میں opposition کے ساتھ طے کرتا ہے کہ جو بھی لیجسلیشن جوائنٹ سیشن میں لایا جائے گا اس پہ پہلے بات کی جائے گی, جب پورے قوم دیکھتا ہے کہ حکومت کے وزراء اور اسپیکر صاحب دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم لیجسلیشن پہ, الیکٹورل ریفارمز کے لیجسلیشن پہ کنسنسس بنانا چاہتا ہے, تو ان کو یہ نظر آنا چاہیے کہ اسپیکر صاحب بھی وہ کنسنسس پیدا کا کوشش کر رہے ہیں, حکومت کے وزراء بھی وہ کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر حکومت اپوزیشن اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں تو پھر اس جرم میں, اس جھوٹ میں آپ کا عہدہ کو, آپ کا دفتر کو اس طریقے سے استعمال نہیں ہونا چاہیے. جتنا سخت مزاحمت کے ساتھ ہم اس پروسیجر پہ اعتراض کر سکتے ہیں, ہم نے آپ کے پاس وفد بھیج کے اعتراض کیا ہے, ان رائٹنگ میں اعتراض کیا ہے, اور آج پورا کا پورا یونائٹڈ اپوزیشن نیشنل اسمبلی کا فلور پہ کھڑا ہو کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے یہ سیشن اور دوسرے سیشنز چلائے جا رہے ہیں وہ پارلیمان کو اور جمہوریت کو انڈرمائن کرتے ہیں. میں جوائنٹ سیشن کا طریقہ کار کے بعد آپ کی جو مین آئٹمز ہیں اس ایجنڈا پہ, جو ہمارے اعتراضات ہیں, وہ ہم ضرور ریکارڈ پہ لانا چاہیں گے, آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے جس طریقے سے اور جس انداز سے اس حکومت نے یک طرفہ الیکشن ریفارمز کرنے کی کوشش کی, یہ پاکستان کی تاریخ نے نہیں دیکھا ہے کہ
ایک حکومت پہلے از خود آرڈیننس کے تھرو الیکٹورل ریفارمز کرنے کی کوشش کرے اور اب وہ بلڈوز کر کے اس ایوان سے الیکٹورل ریفارمز زبردستی پاس کروانا چاہتے ہیں. جیسے قائد حزب اختلاف نے کہا, ہم نے میاں صاحب کے دور میں دیکھا جب میاں صاحب کو 2/3 میجورٹی دی گئی, اگر اس وقت کا حکومت یہ یک طرفہ فیصلہ کرتا کہ انہوں نے اپنا اکثریت استعمال کر کے زبردستی قانون سازی کرنا ہے, زبردستی الیکٹورل ریفارمز لے کر آنا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکتے تھے. اگر وہ یہ فیصلہ کرتے کہ آئین میں ترمیم لے کر آنا ہے اور ممبران پارلیمان وائس ووٹ سے منتخب ہو جائیں گے تو ہمیں ان کا فیصلہ ماننا پڑتا, مگر انہوں نے بڑا دانش مندی سے ایک پورا کنسنسس, اس وقت جب آپ کا جماعت اتنا سخت سٹینڈ لے رہا تھا, ہم نے پھر بھی اس ماحول میں سب مل بیٹھ کے ایک ایسا قانون سازی کیا جس پہ نون لیگ بھی متفق, جس میں پیپلز پارٹی بھی متفق, جس میں جے یو آئی اور باقی جماعتوں بھی متفق, اور سب سے بھر کر پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے کارکن اور آج کے جو وزیر ہے وہ بھی متفق تھے. آپ اس قسم کا قدم آج بھی اٹھاتے, آپ کے اتحادی ایک پل کا کردار اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اپنا لیتے, تو آج ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے جو پورشنز الیکٹورل ریفارمز کے جس پہ نون لیگ متفق ہے, جس پہ ہم متفق ہے, ہم آپ کے ساتھ قانون سازی کر رہے ہوتے. اور اگر ہم سب مل کے قانون سازی کرتے تو اگلا الیکشنز متنازع نہیں ہوتے, اگلا الیکشنز ٹرانسپیرنٹ ہوتے, یہ خان صاحب کا کامیابی ہوتا. مگر آج جو آپ کرنے جا رہے ہیں, جو آپ زبردستی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اپوزیشن کے اعتراضات کے باوجود پاس کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کا 34 پوائنٹس کا اعتراضات کے باوجود کر رہے ہیں, اگر آپ اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں آج سے آپ کو بتا رہا ہوں جناب اسپیکر, ہم آج سے اگلا الیکشن نہیں مانتے ہیں, ہم آج سے الیکٹورل ووٹنگ مشینز نہیں مانتے ہیں, ہم آپ کو ایسے الیکشن نہیں کرنے دیں گے, اور ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جب تک ان کا اعتراضات ہے تب تک ہمارا اعتراضات ہے. آپ سے ایک معصومانہ سوال ہے جناب اسپیکر کہ الیکٹرانک ووٹنگ کا حق پارلیمان میں ہے, نیشنل اسمبلی میں ہے, آپ کے سامنے اس دیوار پہ الیکٹرانک ووٹنگ کا سلسلہ موجود ہے مگر کام نہیں کرتا. ہم پارلیمان میں الیکٹرانک ووٹنگ نہیں کر سکتے مگر اس امید کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ 20 مہینے کے اندر کسی طریقے سے الیکشن کمیشن پاکستان کا ہر پولنگ سٹیشن میں ایک ایسا کمپیوٹر لگائے گا جس کے تحت ہم الیکشن کروائیں گے. آپ آج سے الیکشنز کو متنازع بنا رہے ہیں, ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں آپ اپنا عہدہ کا عزت کریں, آپ اپنا ہی بات پہ آ جائے, جو بات آپ نے رائٹنگ میں ہم سے دیا تھا. آج بھی ہم بیٹھتے ہیں, کل بھی ہم بیٹھتے ہیں, کیا جلدی ہے, ہم مل بیٹھ کے ایک ایسا الیکٹورل ریفارمز لے کر آئے جس پہ نہ میں اعتراض کر سکتا ہوں نہ شہباز شریف صاحب اعتراض کر سکتا ہے, جو الیکشن جیتتا ہے ان کا حکومت بنے. یہ صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا تو سوال نہیں ہے, آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز بھی زبردستی کر رہے ہیں. جو الیکشن کمیشن کا آئینی حق ہے کہ ووٹر لسٹ الیکشن کمیشن کا اتھارٹی کا ہے, یہ تحفظ اور یہ پروٹیکشن ووٹر لسٹ کو اور الیکشن کمیشن کو آئین پاکستان دیتا ہے. آپ کا آج کوشش ہے کہ قانون سازی کے تھرو آپ آئین کے خلاف ورزی کرے,
आप कैसे कानून साजी के थ्रू जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन से छीन कर एक हुकूमती इदारा को नादरा का देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज अपना अक्सरियत इस्तेमाल करके ये पास भी कर ले। मैं आपको बता रहा हूं, हुकूमत के बेंचेस को बता रहा हूं, हम कोर्ट जाएंगे, हम अदालत जाएंगे। हमने ये आईने पाकिस्तान बनाया है जनाब स्पीकर, और आपका ये जो कानून है जो पाकिस्तान की आईन के खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसको हम चैलेंज भी करेंगे और अदालत में डिफीट भी करेंगे। आपका ये एक नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया कि हम ओवरसीज पाकिस्तानीज जो पाकिस्तान की मईशत को इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको वोट का हक देना चाहते हैं, उनका नुमाइंदगी का हक देना चाहते हैं। ये इस मौकिफ का हमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, इस मौकिफ का हमायत मुस्लिम लीग नवाज ने भी किया है, मगर आप इसके बावजूद यक तरफा जबरदस्ती अपने तरीका का कानून साजी करना चाहते हो। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हम भी ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देना चाहते हैं, नुमाइंदगी का हक देना चाहते हैं। आजाद कश्मीर में उनका एक तरीक़ेकार है कि वो भी ओवरसीज पाकिस्तानीज का नुमाइंदगी अपना पार्लियामान में करते हैं। हमारा अपील था कि जैसे आजाद कश्मीर में होता है वैसे पाकिस्तान में हो, जैसे आजाद कश्मीर के नुमाइंदे बैरूने मुल्क कश्मीरियों को नुमाइंदगी देते हैं, वैसे हम भी दे सकते हैं। मगर हम आपका तरीका कैसे मान सकते हैं, आपका सजेशन को कैसे मान सकते हैं, जब आप कह रहे हो कि जो पेरिस में पाकिस्तानी बैठा होगा, जो कैलिफोर्निया में पाकिस्तानी बैठा होगा, जो ब्रिटानिया में पाकिस्तानी बैठा होगा, वो कबायली इलाकों के, वो बलोचिस्तान के, वो हमारा कराची के फैसला करे, उनका अपना नुमाइंदा हो, उनका अपना इलेक्टोरल कॉलेज हो जो जिसके तहत वो ओवरसीज पाकिस्तानीज का नुमाइंदगी करे। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है कि वोट पेरिस में डले और रिजल्ट मुल्तान का हो, वोट कैलिफोर्निया में डले और वोट निकले सिबी से। ये उन पाकिस्तानियों जो इस हुकूमत की तारीखी महंगाई भुगत रहे हैं, जो इस हुकूमत का तारीखी बेरोजगारी और तारीखी गुर्बत भुगत रहे हैं, उनका आवाज डायल्यूट करने की कोशिश है, उनके आवाज दबाने की कोशिश है। इसमें हम हुकूमत को कैसे कामयाब होने देंगे जनाब स्पीकर? आप इस जॉइंट सेशन में पाकिस्तान के अवाम के वोट पे डाका मार रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कल किसी को यह इजाजत दी गई है, ना आज हम किसी को इजाजत देंगे कि ये काम इस तरीके से हो। इस हुकूमत का बदनीयती पे बेबनी एक कोशिश कुछ सालों से चल रहा है कि वो कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाए। उन्होंने पहले रात के अंधेरों में किसी को बताए बगैर ऑर्डिनेंस निकाल के एक भारत की जासूस को फायदा पहुंचाने की कोशिश किया, मगर उस भारत की जासूस ने आपका ऑर्डिनेंस का फायदा नहीं लिया, आपका एनआरओ का फायदा नहीं लिया। तो आज आप पाकिस्तान की पार्लियामान की तौहीन कर रहे हो, आप पाकिस्तान की पार्लियामान को इस्तेमाल कर रहे हो कि उस भारत की जासूस को हम एनआरओ दिलवा दे। हम आपसे मुतालबा करते हैं, अगर आपने किसी को रिलीफ पहुंचाना है तो वो पाकिस्तान के गरीब अवाम जो गुर्बत की वजह से परेशान है, जो महंगाई की वजह से तकलीफ में है, जो बेरोजगारी की वजह से तकलीफ में है, उनको आप रिलीफ पहुंचाए। आज भी हम आपके साथ देने को तैयार हो। पेट्रोल की कीमत कम करे, हम आपके साथ देंगे। गैस की कीमत कम करे, हम आपके साथ देंगे। लेकिन ये कैसे आप उम्मीद रख सकते हो, ये कैसे आप उम्मीद रख सकते हो कि हम आपको इजाजत भी देंगे कि आप इस ज़बान को इस्तेमाल करके भारत का जासूस कुलभूषण यादव
जिस पे पीटीआई के कारकुन इलेक्शन से पहले उसका नाम लेके सियासत करते थे, अब हुकूमत में आके उसको एनआरओ देने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, आखिर 2 पॉइंट्स पर मैं खत्म कर रहा हूं। आपने आईएमएफ की हुक्म मानते हुए, आईएमएफ की गुलामी करते हुए, उसी आईएमएफ का जिसके बारे में वजीर आजम ने इलेक्शन से पहले कहा था, वजीर आजम ने मुल्क से वादा किया था कि आईएमएफ के पास जाने से पहले वो खुदकुशी को तरजीह देगा। अब 3 साल हो चुके हैं, इस पीटीआईएमएफ डील का बोझ आम आदमी उठा रहा है, अपने खाने पीने के अशिया की बिल की सूरत में, अपने दवाइयों की कीमत में बिल की सूरत में। आम पाकिस्तानी आपके गलत पॉलिसीज, आपकी मुआशी पॉलिसीज की वजह से आज मुश्किल में हैं, और आप इस पार्लियामान को इस्तेमाल करके आईएमएफ का गुलामी करते हुए पाकिस्तान के स्टेट बैंक को आईएमएफ के नीचे ले आना चाहते हो। पाकिस्तान का स्टेट बैंक पार्लियामान का जवाबदेह होना चाहिए। पाकिस्तान का स्टेट बैंक नेशनल असेंबली और सेनेट का जवाबदेह होना चाहिए। अदालती निजाम का जवाबदेह होना चाहिए। आप ये कानून साजी करने की कोशिश कर रहे हो कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक आईएमएफ को जवाबदेह होगा, मगर पार्लियामान से बालतर होगा, सेनेट से बालतर होगा, नेशनल असेंबली से सुप्रीम होगा, अदालत भी उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं दे सकता। तो हम ये कैसे मान सकते हैं? हम ये कैसे मान सकते हैं? हम कहते हैं कि पार्लियामान सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, कोई इदारा ऐसा नहीं है जो पार्लियामान से बालतर है। अब आईएमएफ के कहने पे पार्लियामान के हाथ नहीं बांध सकते हो, ये भी आपका कोशिश नाकाम रहेगा। हम आपका इस कोशिश को भी इंशाअल्लाह ताला अदालत के सामने चैलेंज करेंगे जनाब स्पीकर। और जो मेरा आखिरी पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में है, जो आपने बड़े मेहरबानी से हमारा जॉइंट सेशन का एजेंडा का आखिरी आइटम पे, आइटम नंबर 60 पे सेंसस के बारे में पॉइंट उठाए है। इसके बारे में मुझे आई वांट टू ब्रिंग ऑन टू द रिकॉर्ड ऑफ द हाउस कि किस तरीके से इस कानूनी प्रोसेस का भी नॉर्म्स और रूल्स फॉलो नहीं किया गया। आई वुड लाइक टू रिमाइंड द हाउस कि इलेक्शन से पहले जो मुतनाज़ा सेंसस करवाया गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर में एतराज किया, एहतजाज किया कि ये सेंसस ट्रांसपेरेंट नहीं था, ये सेंसस दुरुस्त नहीं है। हमें कहा गया कि अगर सेंसस को इंटरम अप्रूवल नहीं दिया जाता तो इलेक्शंस डिले होंगे, शायद इलेक्शंस होंगे ही नहीं। तो इस शर्त पे हमने इंटरम उस सेंसस को उस इलेक्शन की हद तक माना था, मगर साथ साथ ये मुतालबा डाला था कि एक स्पेसिफिक पोर्शन का रीचेक किया जाएगा, और उस रीचेक के फिगर्स अगर सेंसस से मैच नहीं करते तो हम सेंसस से एक बार फिर करवाएंगे। कुछ महीने पहले इन द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जहां सारे सूबे की नुमाइंदगी है, और सेंसस का बात एक बार फिर उठाया गया, तो सूबा सिंध ने ना सिर्फ सूबा सिंध का नुमाइंदगी करते हुए मगर साबिक कबायली इलाके के एतराजात भी मौजूद है, बलोचिस्तान के एतराजात भी मौजूद है। हमने उस फोरम पे भी अपना एतराजात रिकॉर्ड किए, मगर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कि सारे सूबे के कंसेंसस के साथ सारे फैसले करते हैं। माजी में हर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो मीटिंग है वो कंसेंसस के साथ फैसले किए, लेकिन पिछले मीटिंग में, उससे पहले जब ये सेंसस का
इशू उठा तो तारीख में पहली बार कंसेंसस से नहीं, मेजॉरिटी वोट से ये गलत सेंसस, ये मुतनाज़ा सेंसस को अप्रूवल दिया गया। हुकूमत सिंध ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1547 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अग्रीव पार्टी को हक देता है कि उनका कोई शिकायत वो पार्लियामान को लिख के रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे ही वो खत स्पीकर को मिलेगा, वो फौरन पार्लियामान के हर मेंबर के पास उस सूबा का एतराजात पहुंचाएगा और अगला ही जॉइंट सिटिंग में उस इशू पे डिबेट होगा। ना जनाब स्पीकर, आपका अपना ऑर्डर ऑफ बिजनेस के मुताबिक कहा जा रहा है कि आपने सूबाई सिंध के एतराजात मेंबर के दरमियान सर्कुलेट किए हैं, मगर मुझ तक वो एतराजात नहीं पहुंचे हैं, किसी एक ऑपोजिशन का मेंबर तक नहीं पहुंचे हैं, तो फिर हम कैसे इस मौजू पे डिबेट करेंगे? और ये मौजू कब तक डिले हो चुका है जनाब स्पीकर? आपका 1974 वो रिकॉर्ड में आपके सामने रखूंगा, जो आपके पूरा रिकॉर्ड आप जरूर रखें, लेकिन ये हमारा हक है, हमसे नहीं छीना जा सकता है। आपने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पहले सेंसस पे जबरदस्ती अप्रूवल लिया है। ये मुतनाज़ा सेंसस बलोचिस्तान का हक पे डाका है, सूबा सिंध के हक पे डाका है। यूनाइटेड नेशंस के अपने रिपोर्ट के मुताबिक जो हर घर का एवरेज पॉपुलेशन है, उनका नंबर्स और जो हुकूमत पाकिस्तान के नंबर्स है, उसमें तनाज़ा है। नजर आता है कि एक दो सूबों में यूएन के फिगर्स और सेंसस का फिगर्स मैच करते हैं, मगर जब सूबा बलोचिस्तान की बात आता है या सूबा सिंध की बात आता है, तो वो जो यूनाइटेड नेशंस कह रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन है, सेंसस उससे कम दिखाता है। ये हमारा वोट पे भी डाका है, हमारा वसाइल पे भी डाका है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस किस्म की नाइंसाफी ना सेंसस के इश्यू पे होने देंगे। और जनाब स्पीकर, इन द लास्ट CCI मीटिंग एक बार फिर पाकिस्तान की तारीख में एक तरफा फैसला किया गया, मेजॉरिटी और वोटिंग के मुताबिक फैसला किया गया। इस बार पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी के मुताबिक सूबा सिंध के एतराजात थे, उस पे भी हमने अपना डिसेंटिंग नोट रिकॉर्ड किया, उस पे भी हमने आपको अपील किया है और उसका रिस्पॉन्स का भी हम मुंतजिर है। बहुत जरूरी है कि एक संजीदा डिबेट इस हाउस में हो, सेंसस के इशू पे इस हाउस में डिबेट हो, इस मुल्क का एनर्जी पॉलिसी के इशू पे। और मैं अफसोस का इजहार करता हूं कि पूरे मुल्क मुश्किल में है, हर आदमी मुश्किल में है, और वो पार्लियामान की तरफ देख रहे हैं, वो सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं कि हम उनके मुश्किलात का हल निकाले, उनका मसाइल का हल निकाले। और उनको क्या नजर आ रहा है कि हुकूमत महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का हल निकालने के बजाय जबरदस्ती EVMs पास करके धांधली करने की कोशिश कर रहा है, कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस पास कर रहा है, IMF की गुलामी कर रहा है। ये पाकिस्तान के अवाम का वोट पे डाका है, पाकिस्तान के अवाम की जेब पे डाका है, पाकिस्तान के अवाम के पेट पे डाका है। और मुत्तहिद ऑपोजिशन आपके खिलाफ इस हाउस में एहतजाज करेगा और हाउस के बाहर भी एहतजाज करेगा, अदालत तक पहुंचेंगे, पर आपको इस किस्म का जुल्म नहीं करने देंगे। और आखिरी बार जनाब स्पीकर, प्लीज, अगर आप अपना ओहदा का इज्जत नहीं करेंगे तो कौन कर सकता है? थैंक यू। असद महमूद साहब।